after we see the basic formula, the relation between U and V, अभी हमें कुछ important चीजें देखना है regarding magnification for refraction at single surface. ठीक है, तो चलो देखते हैं. Supposing here is the spherical surface and here is the center of the spherical surface. Suppose here is an object. अब देखिए, अगर ऑब्जेक्ट से कोई रे आके इस सेंटर से पास करता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो रे इधर से जाएगा, that will be normal here. There will be no refraction. So the ray from the object passing through the center of curvature goes undeviated. ये समझ में आ गया. चलिए हम यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन करना चाहते हैं, तो where the image is located at the point of intersection of the refracted rays. तो दूसरा रिफ्रैक्टेड रे लेते हैं. चलो कोई रे यहाँ पे डालते हैं. यहाँ पे डालेंगे तो ये हो गया उसका इंसिडेंट एंगल. अब ये प्रिंसिपल एक्सिस विल बिहेव एज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगा, सपोज कुछ ऐसे हुआ, अब ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. Now the two rays coming from the same point are meeting here, so you find a real image is formed here, and you say the image formed here is, suppose I dash. This point is P. ऑब्जेक्ट को भी नेमिंग कर देते हैं O dash. हम इसमें क्या करना चाहते हैं? We want to find out the lateral magnification. मतलब ये जो m है वो क्या है? It is height of image by height of object. ये चीज हमें निकालना है. अब हाइट ऑफ इमेज क्या हुआ? ये वाला call it hi. इसका हाइट क्या है? ho. अच्छा, ये हमें पता करना है. Here what we see that the refraction occurs at point P. तो अगर हम कहेंगे कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका μ2 है, तो μ1 sin I is equal to μ2 sin R, है ना. और हमारा जनरल असम्पशन क्या था? The rays are almost parallel to principal axis. मतलब I and R are very small. As I and R are very small, हम क्या कहेंगे? sin I is equal to tan I, है ना, and sin R is equal to tan R. क्योंकि स्मॉल वैल्यूज के लिए, स्मॉल I के लिए cos I will be 1, cos R will be 1. अच्छा, so what we find? μ1 tan I is equal to μ2 tan R. थोड़ा अगर ध्यान से देखेंगे, μ1 tan I का वैल्यू क्या है? tan I is this by this. It is O dash by PO is equal to μ2. tan R क्या हो गया? tan R is I dash by PI. I dash by PI. Now as per the sign convention, अगर वैल्यूज डालेंगे तो बताओ O dash के लिए क्या डालेंगे? O dash के लिए डालेंगे ये height of the object which is always taken positive. Now PO हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज इधर है, तो हम कहेंगे direction of incident ray parallel to principal axis gives the positive direction for sign convention. मतलब ये डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेने वाले हैं. हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन पॉजिटिव, तो ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लेने वाले हैं. तो ये साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है. तो बताओ PO क्या हो जाएगा? नाउ यू नो ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल.
PO हो जाएगा इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो लिखेंगे -u दैट इज इक्वल टू μ2 I डैश क्या हो गया देखो तो हाइट ऑफ द इमेज, लेकिन वो तो उल्टा है, तो क्या कहेंगे -hi by pi, p से I, it is in this direction, so it is v. So this way we are getting an arrangement like this. From this we conclude that μ1 ho by u, एक माइनस साइन इधर एक माइनस साइन कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू μ2 hi by v और hi by ho, that is the magnification, lateral magnification क्या दे रहा है, it is μ1 v by μ2. So the magnification is given by μ1 v by μ2 u. ये हो गया फॉर्मूला फॉर दी मैग्निफिकेशन. ठीक है, बेहतर समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एक न्यूमेरिकल कर लेंगे. अभी हम ये फॉर्मूला देख चुके हैं. m the lateral magnification is height of image by height of object which has come out as μ1 v by μ2 u. ये फॉर्मूला हमें समझ में आया. Here is a question. क्या लिखेंगे, an object of height 4 centimeter was kept at a distance 80 centimeter from the spherical surface of radius 40 centimeter. ठीक है, फाइंड nature, position and size of इमेज के बारे में सब कुछ पूछा गया है. ये हो गया क्वेश्चन सबको समझ में आ गया. देखो कोई बड़ी चीज तो है नहीं. ये जो स्फेरिकल सरफेस है which is separating the two medium, इसका R दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर. तो पहले हम क्या करेंगे, v निकालने की कोशिश करेंगे. तो कैसे करेंगे, let us start with, we know that μ2 by v minus μ1 by u is equal to μ2 minus μ1 by r. सीधे वैल्यू डालेंगे. v तो पता करना है, μ2 मालूम है, 2 by v minus 1.5 by u. u कितना है, दिस इज ए डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर. क्वेश्चन में दिया गया है कि ये 80 सेंटीमीटर है. अगर ये 80 सेंटीमीटर है तो क्या लिखेंगे, -80 इज इक्वल टू 2 minus 1.5 by r. r क्या लेना है, रेडियस ऑफ दिस सरफेस, मतलब डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम हियर. तो सेंटर इसका किधर होएगा, इधर ही होगा. p से इधर का डिस्टेंस क्या लेंगे, -40. यस, थोड़ा सिंप्लीफाई करके तो लिखो 2 by v प्लस ये 3 by 2 है, 3 by 2 है तो 3 by 160 माइनस माइनस प्लस हो गया, इज इक्वल टू 0.5 by -40 इज 1 by -1/80. ठीक है, तो क्या मिला इसमें से, 2 by v इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/80 प्लस 3 by 160, दैट इज इक्वल टू, ये हो गया 2 plus 3 माइनस ऑफ 5 by 160, तो इट इज कमिंग -1/80.
32। तो फिर v कितना आया, v इज कमिंग आउट टू बी -64 सेंटीमीटर। v is coming -64 centimeter. What it means? It means the image will be on this side -64 centimeter. तो हम क्या कहेंगे, माइनस साइन का मतलब हुआ इट इज ए वर्चुअल इमेज। ये एक वर्चुअल इमेज है, ठीक है। और क्या पता चला, पोजीशन पता चल गया, वर्चुअल इमेज है। और ये पूछा है मैग्निफिकेशन। नाउ हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर्मूला क्या था, μ1 v by μ2u, μ1 v by μ2u। μ1 तो दिया है 1.5, μ2 दिया है 2, v कितना था -64 बाय u कितना है -80। तो कितना हो जाएगा देखो, तो ये सिंपलीफाई करो, ये 16, दिस इज 20, 16/20 हो गया, 4/5 तो हो गया 6/10, है ना। फिर हाइट ऑफ इमेज क्या निकलेगा, हाइट ऑफ इमेज इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू 6/10। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था 4 सेंटीमीटर, height of object is 4 centimeter. Height of object is always taken positive, so 4 into 6/10 is 2.4 centimeter. Positive आंसर आया। HI is coming positive, मतलब इरेक्ट है इमेज, क्योंकि इन्वर्टेड होता तो नेगेटिव लेते। तो नेचर क्या कहेंगे, इमेज इज located at a distance 64 centimeter in medium μ1, virtual erect image of diminished size, है ना। वर्चुअल इरेक्ट इमेज ऑफ डिमिनिश्ड साइज, साइज छोटा हो जाएगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, तो हमें मिल गया कि इमेज का साइज क्या होगा, कहां पर होगा, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेटरल मैग्निफिकेशन पार्ट। चलो अभी हम लोग देखते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। लेटरल केस में क्या था, ऑब्जेक्ट वाज स्टैंडिंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, नाउ इट इज लाइंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। लेट du is length of object along principal axis, dv is length of image along principal axis। yes, ये जो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन हम लोग निकाल रहे हैं फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, छोटे ऑब्जेक्ट के लिए। बड़े के लिए फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है, छोटा ऑब्जेक्ट मतलब लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। मान लो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है 40 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट है 1 सेंटीमीटर का। मान लो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है 80 सेंटीमीटर, जो ऑब्जेक्ट है वो 2 सेंटीमीटर का या 1.5 सेंटीमीटर का, तो स्मॉल ऑब्जेक्ट। तो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन में जो m0 कहेंगे वो क्या है, dv/du। कोई भी एक सिस्टम ले लो, ये कोई एक सिस्टम है, ये μ2 है, ये μ1 है,
ये ऑब्जेक्ट रखा है, लेंथ इसका du है, ये इमेज बना है, लेंथ इसका dv है और इसका रेडियस r है। We know that mu2 by v minus mu1 by u is equal to mu2 minus mu1 by r. Abhi mu1, mu2, r, they are all constants. So I can say this entire thing is a constant. That is mu2v minus mu1u is a constant. Differentiate both sides. Differentiating both sides. mu2 तो mu2 रहेगा, 1 by v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 by v स्क्वायर dv माइनस mu1 तो mu1 रहेगा, 1 by u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस 1 by u स्क्वायर du। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। समझ में आ रहा है? नॉट ए डिफिकल्ट थिंग। नाउ कलेक्ट रिस्पेक्टिव टर्म्स। ये टर्म को उधर ले लो। ये क्या मिला, mu1 बाय u स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया इंटू du इज इक्वल टू, ये सारा उधर ले लो, mu2 इंटू dv बाय v स्क्वायर। हमें क्या चाहिए था, m0, दैट इज द लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसको, dv बाय du। क्या मिला देखो तो, dv बाय du मिला mu1 v स्क्वायर बाय mu2 u स्क्वायर। तो हमारा जो लेटरल मैग्निफिकेशन था वो था mu1 v बाय mu2 u, लेकिन जो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन है वो mu1 v स्क्वायर बाय mu2 u स्क्वायर हो गया। But remember this formula is only for small objects. ठीक है, it is only for small objects.